Hello students, today we will talk about floor division operator. This is floor division operator. Floor division operator and modulus operator. Modulus operator in Python. As you know that floor division and mod operator both works very well on integers, but the most important thing about these operator is they work on floating point values also. Floating point values and negative values. So we will learn how they will work on floating point values and negative values. Floor division and modulo operators are easy to understand when used with positive integers or operands, but these become confusing when one or both operands are negative or in floating point. So in this video I will make these easier to understand for all kinds of numeric operands. So today we will discuss more about mod operator and floor division operator. Before starting, I would like to discuss on some built-in methods. Built-in methods are functions in Python. Like in previous video we have discussed about sqrt function. This is an inbuilt function of math module. POW, this is also a inbuilt method of math module. To include these functions, you have to first write import math. This is the name of the module, import math. And if you are using sqrt function, then you will use math.sqrt, and here you will pass any value or any variable. Suppose I have written x, then math.pow x comma n. So what these functions are doing, sqrt will calculate the square root of x and POW will calculate x to the power n. So it requires two parameters or arguments, x and n, and it will calculate x to the power n. Similarly, there is one other function in math module which is math.floor function. Floor function is a built-in function in math module, and what it will do, let's see. Math module. In math module, there is a function math.floor x. So what this function will do, it takes
x as a parameter and returns the greatest integer not greater than x, not greater than x. This is the definition of floor function, means what it will return. So in Python, suppose if I write floor of 2, so it will return 2, means फ्लोर फंक्शन क्या करेगा, x से मीन्स सपोज ये वैल्यू जो भी हम पास कर रहे हैं यहाँ पे ये x है सपोज, तो ये 2 है, तो 2 से छोटी बट नॉट ग्रेटर देन 2 एक इंटीजर वैल्यू, नॉट फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा ये फ्लोर, जो कि 2 से छोटी होगी बट 2 से बड़ी नहीं हो सकती. तो अगर हम लिखते हैं फ्लोर ऑफ 2 तो इट विल रिटर्न 2. अगर हम लिखते हैं फ्लोर ऑफ 2.001, so again it will return 2. If we write floor 2.999, so again it will give you 2. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी वैल्यू हम दे रहे हैं उससे नियरेस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू वो देगा, बट उससे बड़ा नहीं होना चाहिए. तो अगर हम देखें तो ये 2 से 3 के बीच की कोई भी वैल्यू देगा, बट 3 से छोटा होना चाहिए. मतलब ये नियरेस्ट इंटीजर क्या होगा, 2, 2.1, 2.2, 2.99 तक में नियरेस्ट इंटीजर जो सबसे छोटा होगा ये वो रिटर्न करेगा. सिमिलरली अगर हम लिखते हैं फ्लोर ऑफ 3.001, फ्लोर ऑफ 3.999, फ्लोर ऑफ 3, तो इसके लिए 3.001 से सबसे कम छोटा इंटीजर कौन सा है, 3. फ्लोर 3.99 से छोटा इंटीजर कौन है, इंटीजर वैल्यू क्या है, 3. सिमिलरली फ्लोर ऑफ 3 विल बी 3. तो ये जो 3 से 4 के बीच की वैल्यू होगी उसमें अगर हम कोई भी वैल्यू देते हैं तो वो पॉजिटिव इंटीजर रिटर्न करेगा, दैट इज़ 3. अगर हम नेगेटिव वैल्यूज़ की बात करें तो फ्लोर अगर हम लिख रहे हैं फ्लोर -3, और अगर हम लिख रहे हैं फ्लोर -2.99, एंड इफ आई राइट फ्लोर -1.99, सॉरी -2.001. तो इन दिस केस अगर हम नंबर लाइन बनाते हैं, ये देखिए नंबर लाइन है, ये 0 है, ये 1, ये 2, ये 3 एंड ये 4, और यहाँ पे ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये -4 है. तो इसका आउटपुट क्या आएगा, फ्लोर ऑफ -3, फ्लोर ऑफ -3 विल बी -3, फ्लोर ऑफ -2.99 will -3, फ्लोर ऑफ -2.001 -3. तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, इस रेंज के अंदर की जो भी वैल्यू होगी वो सॉरी नॉट दिस, आई मस्ट से दिस, ये जो रेंज है इसके अंदर की जो भी वैल्यू होगी, अब आपको पता है नंबर लाइन में जो राइट वाला नंबर होता है वो हमेशा ग्रेटेस्ट होता है. तो -1 हियर विल बी ग्रेटर एंड -2 हियर विल बी ग्रेटर एंड -3 हियर विल बी ग्रेटर. अगर मैं यहाँ पे
तीन ऑपरेटर्स हैं, एक है डिवाइड, एक है फ्लो डिवीजन और एक है मॉड ऑपरेटर. नाउ इफ आई राइट 50/12, तो दिस इज़ अ सिंपल डिवीजन ऑपरेटर. ये क्या है? सिंपल डिवीजन ऑपरेटर है. तो सिंपल दो नंबर्स को डिवाइड करेगा और हमें आउटपुट दे देगा 4.16. और अगर हम लिखते हैं 50 फ्लो डिवीजन 12, तो ये हमें क्या आउटपुट देगा? फ्लो डिवीजन मीन्स इट विल गिव यू द इंटीजर पार्ट. तो इसका जो इंटीजर पार्ट होगा, मतलब अगर हम लिखें फ्लोर ऑफ 4.16, तो ये हमें क्या दे देगा? 4. इट विल गिव यू 4. आप इसको आइडियली पे रन करके भी चेक कर सकते हैं. तो अगर आप 50/12 लिखेंगे तो ये सिंपल डिवीजन हो रहा है और ये 50 फ्लो डिवीजन 12 है. तो फ्लो डिवीजन क्या करेगा? जो डेसिमल पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट है, उसको रिमूव कर देगा वैल्यू में से डिवाइड करने के बाद. तो जो 4 है, दिस विल बी द आउटपुट ऑफ 50 फ्लो डिवीजन 12. अब नाउ अगर हम इफ आई राइट 50 mod 12, तो ये क्या रिटर्न करेगा? रिमाइंडर. आपको पता है रिमाइंडर ऑपरेटर है. अगर हम 50 को 12 से डिवाइड करते हैं तो ये हमें रिमाइंडर देगा. जो भी इसका रिमाइंडर आएगा, जैसे सपोज हम 50 12 से हमने डिवाइड किया तो 12 4s are 48. So it will give you 2. So it will give you 2 as a remainder. तो ये रिमाइंडर ऑपरेटर है. तो ये इंटीजर वैल्यूज़ है, मतलब ये 50 12 ये इंटीजर वैल्यूज़ पे ये सिंपल वर्क करते हैं ऑपरेटर्स. ये नॉर्मल डिवीजन, ये आपका नॉर्मल डिवीजन है, ये फ्लो डिवीजन है और ये मॉड ऑपरेटर है. लेकिन अगर हम नेगेटिव वैल्यूज़ पे देखें तो ये कुछ डिफरेंटली वर्क करेंगे. तो हम देखते हैं कि ये नेगेटिव वैल्यूज़ पे कैसे वर्क करेंगे. सपोज़ मैंने लिखा 9/4 या लिख रही हूँ मैं -9/-4. सो ये दोनों का रिज़ल्ट क्या आएगा? अगर हम सिंपल डिवीजन कर रहे हैं तो 2.25 विल बी द आंसर. और अगर मैं लिख रही हूँ -9 फ्लो डिवीजन -4, तो ये इस वैल्यू को हम सिर्फ इंटीजर पार्ट लेंगे और बाकी को रिमूव कर देंगे. तो इट विल गिव यू फ्लोर ऑफ 2.25, दैट इज़ 2. अब अगर हम लिखते हैं -9 mod -4, तो अब ये क्या आउटपुट देगा? तो यहाँ पे अगर हमें मॉड निकालना है, ये इस तरीके से अगर हमें मॉड वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे. तो मैं इसको आपको बता रही हूँ. जो हमारा नेक्स्ट है -9 mod -4. तो यहाँ पे हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, R = डिविडेंड माइनस डिवाइज़र इनटू फ्लोर ऑफ क्वेशंट. तो यहाँ पे हमारा जो डिविडेंड है वो क्या है? -9 माइनस, एंड व्हाट इज़ द डिवाइज़र? -4 मल्टीप्लाई फ्लोर ऑफ क्वेशंट. तो क्वेश्चन क्या आएगा इनका? इसका क्वेश्चन है 2.25. तो इसमें से हम सिर्फ इंटीजर पार्ट लेंगे, दैट इज़ 2. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल गिव यू -1. सो द रिज़ल्ट ऑफ -9 mod -4 = -1. तो अगर आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपका आउटपुट -1 आएगा. तो -1 कैसे आया? तो यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन कैलकुलेट दिस वैल्यू. तो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस. अगर दो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं या फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ हैं, उनमें फ्लो डिवीजन और मॉड ऑपरेटर कैसे वर्क करेगा. तो इस तरीके से इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है.
अब जैसे एक और एग्जांपल हम लेते हैं, ये देखिए मैंने बोला -9/4 और 9/-4, तो इन दोनों का जो नॉर्मल डिवीज़न आएगा वो आएगा -2.25। और अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ -9 फ्लोर डिवीज़न 4 और 9 फ्लोर डिवीज़न -4, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? फ्लोर ऑफ -2.25 दैट इज़ -3। और अगर हम मॉड ऑपरेटर अप्लाई करते हैं इन पे, तो इफ़ आई राइट -9 mod 4 और 9 mod -4, तो व्हाट विल बी द आउटपुट? हम यहाँ पे सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, रिमाइंडर इक्वल टू डिविडेंड माइनस डिवाइज़र इनटू फ्लोर ऑफ क्वोशिएंट। सो यहाँ पे ये हो जाएगा -9 माइनस 4 इंटू -3। -3 कैसे आया? इनका रिज़ल्ट जो आएगा वो आएगा -2.25, और जब हम इसका फ्लोर करेंगे तो फ्लोर ऑफ -2.25 विल बी -3, तो यहाँ पे -3 आया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3। So using this formula you can calculate the mod value of any two values. I hope you will understand, students. So do practice, and I am giving you some questions. Suppose if I write 6.3 divided by 1.5, और अगर मैं ले रही हूँ -6.3 अपॉन -1.5, तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा रिज़ल्ट आएगा 4.2। लेकिन अगर हम इनका फ्लोर डिवीज़न करेंगे तो ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? फ्लोर डिवीज़न ऑफ 6.3 फ्लोर डिवीज़न 1.5, तो ये जो रिज़ल्ट हमारा आया है 4.2, इसका अगर हम फ्लोर करेंगे, फ्लोर ऑफ 4.2, तो ये जो आएगा 4, दैट विल बी द आउटपुट ऑफ 6.3 फ्लोर 1.5। और अगर हम मॉड वैल्यू लेते हैं इनकी अगर हम मॉड करते हैं, तो मॉड ऑपरेटर अगर हम लिखते हैं 6.3 मॉड 1.5, तो अब ये मॉड वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी? तो जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था प्रीवियसली, वही सेम फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। नाउ यू विल फाइंड व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस। फर्स्ट यू रन दिस प्रोग्राम एंड यू कैलकुलेट इट मैन्युअली ऑल्सो कि योर रिजल्ट इज़ मैचिंग और नॉट। तो अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ -6.3 mod 1.5, तो using the formula we will write here -6.3 minus 1.5 into -5, because floor of 4.2 will be floor of 4.2 will be -4.2 will be -5। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा रिज़ल्ट आएगा 1.2, तो दिस विल बी द आंसर। तो ये जो मॉड ऑपरेटर है ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ पे इस तरीके से वर्क करता है। तो यही सेम चीज़ आपको, यही सेम फॉर्मूला आपको मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज़ करते समय करना है, और अगर आप फ्लोर डिवीज़न कर रहे हैं तो यूजिंग फ्लोर फंक्शन आप इनको कैलकुलेट कर सकते हैं।